ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਅੰਤਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਤੂਫਾਨ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਅਖੌਤੀ ਡੇਰੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ, ਅਖੌਤੀ ਡੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਹੀ ਕ੍ਰਿਸਚੈਨਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਾਨਿਅਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਰੌਕੀ ਵਾਲਮੀਕੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸੰਗਠਨ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਹੈ ਤੇ ਹੋਰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 7 ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪਾਸਟਰ ਬਜਿੰਦਰ ਦੀ ਹੁਣ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਬੈਠਿਆ ਉਹਦਾ ਉਹ ਅੰਦਰ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਦੀ ਚਰਚ ਨੂੰ ਹੋਇਆ। ਆਪਾਂ ਉਹ ਚਰਚ ਕਹਿੰਦੇ, ਵੈਸੇ ਉਹ ਚਰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਇਆ, ਸਾਰੀ ਪਬਲਿਕ ਉਧਰ ਗਈ। ਤੇ ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਪਾਣੀ ਦੇ ਜਰੀਏ। पीछे जी एक वीडियो भी आई थी अंकुर नरूला की, वो कहता जी तुम्हारे शहीद हुए हमारे थोड़ी मरे हैं, अगर हमारे मरते तब हम वो करते, हम तो मनाएंगे 25 जो दिसंबर मनाते हैं। तो इसी चीज़ के उपर हमेशा ये साडे धर्म नूं मतलब पॉइंट करते हैं। सबको जय मसीह की मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज की वीडियो में मैं आपको ऐसे के अपोस्टल से मिलाने वाला हूँ। आप उनको जानते हैं, लेकिन मैं उनके बारे में क्यों वीडियो बना रहा हूँ इस वीडियो में आपको जल्द से जल्द पता चल जाएगा। पंजाब के अंदर परमेश्वर का जो काम है ना वो तो हो रहा है, लेकिन ये बजरंग दल वाले उन्होंने एक बहुत बड़ा प्लान किया है। किसी भी तरह क्यों ना हो, पंजाब के अंदर प्रभु यीशु मसीह का जो काम हो रहा है उनको रोकना है। ਜਿਹੜਾ ਮੈਜਿਕ ਪਾਣੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਆ ਇਹਦਾ ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਵਿਕਣ ਲੱਗ ਜੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੇ 20 ਰੁਪਏ ਦੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ 200 ਰੁਪਏ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਪੀਓ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਤੇਲ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਮੇਨ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੈਸਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾ ਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸਾਡੇ ਧਰਮ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਆ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਧਰਮ ਵਿਰੋਧੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਇਹਨੂੰ ਤੋੜ ਮਰੋੜ ਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਬਚਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖੋਲ ਲਏ ਬੜੇ ਬੜੇ, ਪਾਣੀ ਤੇਲ ਪਾਣੀ ਵੇਚਣਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆ, ਅਸੀਂ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੁਆਬੀ ਜੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੰਕੁਰ ਨਰੂਲਾ ਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾਮ ਲਿੱਤਾ ਉਹ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਦੇ ਅੰਤਰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਨਵਰਜ਼ਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾ ਨਾਲ ਲੋਕ ਆ ਕੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਾਂ ਜਬਰਨ ਨਹੀਂ ਕਰਾ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਤੁਹਾਡਾ? ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਕਨਵਰਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਨਸਪਾਇਰਡ ਹੋਇਆ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੈਂ ਇਨਸਪਾਇਰ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ, ਉਹ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਮੇਰਾ ਇੱਛਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਓ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਦ ਦੂਰ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਉਹ ਤਾਂ ਭੋਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। 100 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ 80 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਅੱਧਾ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਢਿੱਡ ਦੀ ਪੀੜ ਹੈਗੀ ਆ, ਮੈਂ ਗੋਲੀ ਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਗੋਲੀ ਨਹੀਂ ਖਾਊਂਗਾ ਤਾਂ ਵੀ 4 ਘੰਟੇ 'ਚ ਠੀਕ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ। 100 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਇਹ 4 ਲੋਕ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਬਾਕੀ 80 ਭਰਮਾਏ ਗਏ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਹੈਗਾ ਭਰਮਾ ਕੇ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਨਸਪਾਇਰ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਕੇ ਕਰਵਾਇਆ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बेवकूफ बना के भरमा के कन्वर्जन करवाया जा रहा है। उनका सोच, उनका माइंडसेट ऐसा है, किसी भी तरह क्यों ना हो हम पंजाब में क्या करेंगे, रोकेंगे, प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को रोकेंगे। तो ये लोग क्या कर सकते हैं आप भी जानते हैं। ये लोग झूठा धर्म परिवर्तन की आरोप ये लगा सकते हैं। ये लोग सिर्फ इतना कर सकते हैं और कुछ भी नहीं। धर्मांतरण का आरोप लगाएंगे, पास्टर को जेल भेजेंगे। अगर हो सके तो ये लोग झूठा आरोप लगाकर कुछ विश्वासी भाई बहन को भी वो जेल भेजेंगे। ये इन लोगों का सोच है। जी हाँ, ये इन लोगों का माइंडसेट है। लेकिन ये जो बजरंग दल वाले जिस अपोस्टल को टारगेट किया है, बजरंग दल वाले को शायद पता नहीं है ये अपोस्टल कितना पावरफुल है। स्पिरिचुअल की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, मैं जागतिक के रूप में मैं बात करता हूँ, शारीरिक रूप में मैं बात करता हूँ। और उनका नाम क्या है आपको ज़रूर पता है, क्योंकि आपने ऑलरेडी थंबनेल देख लिया है। उनका नाम है अपोस्टल अंकुर नरूला। जी हाँ, लेकिन आपको क्या लगता है ये जो बजरंग दल वाले हैं, क्या ये अपोस्टल अंकुर नरूला को फंसा सकते हैं? मेरा आंसर है बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। क्योंकि जिनको कानून के बारे में हमारा संविधान का जो आर्टिकल्स है
उनके बारे में जिनको नॉलेज है, आइन कानून के बारे में जिसको अच्छी तरह से जानकारी है, वो कभी भी नहीं फंसेगा। ऐसे कोई भी बजरंग दल वाले नहीं है जो कि पास्टर को झूठी केस में फंसा सके, खास करके अपोस्टल अंकुर नरुला। क्या आपको विश्वास नहीं है? मैं आपको एक वीडियो क्लिप दिखाता हूँ। वो वीडियो क्लिप आप एक बार देखिए। वो वीडियो क्लिप को आप देखिए, देखने के बाद आप मुझे कमेंट कीजिए। क्या आपको ऐसा लगता है, क्या आपको ऐसा लगता है कि अपोस्टल अंकुर नरुला उनको कोई बजरंग दल वाले फंसा सकते हैं? मेरा मानना है ये लोग नहीं कर सकते, नहीं फंसा सकते, क्योंकि अपोस्टल अंकुर नरुला को कानून के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है। जी हाँ, कानून के बारे में अच्छी तरह से नॉलेज है। हमारा संविधान में जो जो आर्टिकल है उनको अच्छी तरह से पता है। और अगर कोई धर्म परिवर्तन का झूठा आरोप लगाता है तो उनका कैसे बैंड बजाना है वो भी ये अपोस्टल को अच्छी तरह से मालूम है। जी हाँ, चलिए मैं उनका स्टेटमेंट मैं आपको सुनाता हूँ, उसके बाद आप कमेंट कीजिए। क्या कोई बजरंग दल वाले या फिर कोई मसीह विरोधी या अपोस्टल को फंसा सकता है क्या? चलिए हम देखते हैं। आज जब लोग, आपको मालूम, लोग आजकल जो माहौल पिछले दिनों में चल रहा था, लोग आपको बोलते थे ये इसने धर्म परिवर्तन किया है, इस पे केस कर दो। तो मैंने अपने जो मेंटरशिप के पास्टर्स हैं, मैंने उनको समझाया। मैंने कहा अगर कोई आपको ये बोले कि तूने धर्म परिवर्तन कर लिया, तेरे पे केस करेंगे। आप जानते हैं लॉ के मुताबिक, इंडियन कानून के मुताबिक धर्म परिवर्तन करना पाप नहीं है और लॉ के खिलाफ नहीं है। आप लॉ के हिसाब से रोज धर्म चेंज कर सकते हैं और कानून आपको इजाजत देता है। कोई बंदा आप पर कुछ नहीं कर सकता। यहां तक कि, सुनो मेरी बात, लोगों को मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते हैं। हमने प्रीच किया है, हमने साबित किया है, लोगों ने साबित किया है। यहां आने वाले लोगों के नाम चेंज नहीं किए गए। उन्हें मालूम है ये बात कि हम धर्म नहीं बदलते, लेकिन फिर भी उनको कीड़ा है तंग करने का। और वो कैसे तंग करते हैं? तूने धर्म बदल लिया। और अगर आप लॉ के जानकार हों, अगर आपको लॉ का मालूम हो, अगर आप उसको आगे से पूछें कि इंडियन लॉ के मुताबिक क्या धर्म परिवर्तन करना अपराध है, अगर तो अपराध है तो मुझे अरेस्ट करो, अगर अपराध नहीं है तो मैं तुझे, जो मुझे लॉ के मुताबिक चलने से रोक रहा है, मैं तुझ पे कार्रवाई करवा सकता हूं और पुलिस को उस पे कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपको पता है ये बात? यहां तक कि अगर आपके ऊपर कोई पुलिस वाला भी इस विषय पे केस करता है कि आप लोगों ने धर्म परिवर्तन किया, तो उस पर भी केस बनता है, उसको सस्पेंड किया जाता है। ऐसा हुआ है गुरदासपुर में, जहां हमारे लोगों को पकड़ के लेके गए और बोला कि धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं। वो पुलिस वाला जो पकड़ के लेके गया वो सस्पेंड हुआ। क्योंकि आपको अगर लॉ की नॉलेज है, आपको यह मालूम होना चाहिए कि धर्म परिवर्तन करना अपराध नहीं, लालच देकर धर्म परिवर्तन करना अपराध है। और लोगों को मालूम है हम लालच नहीं देते, आपको भी मालूम है, हाँ या ना? अगर कोई ये बोलता है कि तूने लालच देकर धर्म परिवर्तन किया है, उसको बोलो प्रूफ कर। अगर तू प्रूफ नहीं कर पाया तो हम तुझ पे एक्शन लेंगे। अभी वो डर जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूं। कोई बंदा प्रूफ नहीं कर पाया, जिस तरह एलियन है जी, एलियन यूएफओ दिखा, बस वो एलियन दिखता है, ओरिजिनल में है नहीं। उसी तरह से धर्म परिवर्तन की बात सिर्फ एलियन है, कभी भी ओरिजिनल में साबित नहीं की जा सकती। 50 से 60 लाख लोग पंजाब में क्रिश्चियन हैं, अभी एक भी आप जगह साबित नहीं कर पाए कि हमने धर्म परिवर्तन लालच देके किया होगा, क्योंकि ये है ही नहीं। आमीन। मैं एक सांसारिक नॉलेज की बात कर रहा हूं कि अगर आपको सांसारिक नॉलेज है तो आप, अगर कोई आपसे बोले कि तूने धर्म, किसी भी बंदे को, दूसरे धर्म के बंदे को यह कहना कि मेरी चर्च में चल या मेरे धर्म को मान, तो ये सब छोड़ दे, ये भी अपराध नहीं है।
आप किसी क्रिश्चियन को बोल सकते हो अपना क्रॉस उतार दे, चर्च में जाना बंद कर दे, हमारे धर्म में आ, यह अपराध नहीं है। आप लालच दे के बोलो, डरा के बोलो, धमका के बोलो, वो अपराध है। तो ये आपको अगर नॉलेज है तो ये आपके संसारिक छुटकारे का कारण बनती है।